आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस पढ़ेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस वो होते हैं, आई मीन के when we are going to transfer the same words as someone has spoken, that we are speaking or telling someone the direct sentences. If we are going to tell someone uh, some words about that one said, I mean in our own words, means that in my own words means that I'm telling the indirect sentences or I'm speaking the indirect sentences. इसको आज हमने पढ़ना है। इसमें there are two main ways of reporting people's words. First, direct speech. Second, indirect speech. Direct speech में it consists of someone's exact words. It is written inside inverted commas. It begins with a capital letter. And indirect speech, it is the reported speech. The verb introducing the reported speech is called a reporting verb. अब हम इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे। उन रूल्स में इन बातों को समझेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, कि क्या है एक्चुअली और क्या हमें इसके ऊपर करना है। रूल नंबर वन, चेंजिंग द पंचुएशन। डेफिनेटली हम इसमें पंचुएशन चेंज करते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंसेस के अंदर। डायरेक्ट में पंचुएशंस होती हैं, इनडायरेक्ट में पंचुएशंस नहीं होती हैं। कौन सी पंचुएशन नहीं होती हैं? ये कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमास। ये हमारा डायरेक्ट सेंटेंस है। दिस इज अ डायरेक्ट सेंटेंस। ही सेज आई एम वेरी बिजी। He says that he is very busy, means that this is an indirect, this is a direct sentence. And what we're talking about, the punctuations are comma और inverted commas. Simple, इसमें नहीं है, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद चेंजिंग द टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन हमारा सेकंड रूल है। उसके अंदर सिंपल आप इसको देख लें। दिस दैट में चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में। दीज दोज में हो जाता है। हियर हियर देयर में हो जाता है। नाउ देन। इसी तरह से टुडे, दैट डे, thus, so, ago, before, yesterday, the the day before, or the previous day, last week, the week before, the previous week, the day after tomorrow, in 2 days time, tomorrow, next day, the following day, next day or week, the following day or the following week. Changing the person. When we are going to change the direct sentence to indirect sentences, I mean direct sentences to indirect sentences, definitely that we change some the reported speech subject according to us. Because if she says something, so she is going to say I, and this I we are going to change to she. ये हमें इसके अंदर पढ़ना है। इसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आई एंड वी, and the first person possessive adjectives my and our change according to the subject of the reporting verb. Here the second one, second person pronoun you and the second person possessive adjective your change according to the object of the reporting verb. She says I am lucky to win the prize. यहाँ I जो है वो डेफिनेटली she है। जब हम इसको अपने वर्ड में बोलेंगे तो इस I को हम she में चेंज करेंगे। She says that she is lucky to win the prize. इसी तरह से जो हमारे जो वी है यहाँ पे प्रोनाउन, इस वी को हम डेफिनेटली दे में चेंज करेंगे। दे से वी आर गेटिंग लेट, दे से दे आर गेटिंग लेट। यहाँ पे वो वी थे और हमारे पास वो दे हैं। सिंपल। चेंजिंग से टू टेल इन रिपोर्टिंग स्पीच। अगर if there, ये थोड़ा सा इधर हो गया, if there is an object after say it changes into tell. If there is no object after say it remains say and does not change to tell. Means अगर हमारा रिपोर्टिंग हमने इसमें देखा कि अगर हमारा फर्स्ट सेंटेंस मीन्स जो भी हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है यानी इनडायरेक्ट का, तो उसके अंदर अगर से के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट की वजह से हम से को टेल में चेंज करते हैं। ये हम आगे इसको थोड़ा सा सेंटेंसेस आते हैं तो फिर मैं आपको इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। इन डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस वी यूज दैट टू बिगिन द रिपोर्टेड स्पीच। समटाइम्स देयर इज नो ऑब्जेक्ट after repeating verb
and the speaker say you, assume that you are being talked to, change you to I or me, we or us. Simply इस इन रूल्स, ये वही रूल्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया था देन कि शी इज़ जस्ट टेलिंग समथिंग, so she is going to use I, and I will be in she, because when we'll just transfer or shift our words to you means in our own words, so definitely that will use that pronoun. Rule number 5, नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच. देखें रिपोर्टेड स्पीच में उस टाइम कोई चेंज नहीं आता व्हेन दैट हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच का जो भी सेंटेंस है, वो अगर पहला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है या प्रेजेंट परफेक्ट में है या फ्यूचर सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता. इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट, present perfect, future indefinite tense or simple future, there is no change of the tenses in the reported speech. लेकिन अगर हमारा जो सेंटेंस है रिपोर्टिंग वाला, यानी हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला सेंटेंस है, ये सेंटेंसेस जो हमारे हैं ये अगर पास्ट में होगा तो फिर डेफिनेटली आगे जो सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो वो चेंज होगा. तो इन रूल्स को जो है ना हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं. अभी हम इसको यहाँ तक रखते हैं. इसकी जो आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो हम रूल नंबर 6 चेंजिंग द टेंसेस से स्टार्ट अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसको हम कर लेंगे. तो फिर हम इसके आगे से जो हमारा सेक्शन 5 है इसके आगे से हम उसको स्टडी करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.